اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جیوگرافیہ میں۔ آج ہم ایک نیا یونٹ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے واٹر ریسورسز۔ تو واٹر ایز اے ریسورس، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، افادیت ہے۔ تو ہم واٹر کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اور واٹر کی بہت زیادہ یوزز بھی ہے۔ اٹ از یوزڈ فار ڈرنکنگ، washing clothes, for cooking food, and we use water to irrigate our fields, and it has also industrial use or commercial use as well. ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے، اس کی جو سرفیس ہے، 3/4 آف ارتھ سرفیس از کورڈ وتھ واٹر، دیٹ مینس 75%، ہم لیتے ہیں 70%۔ ٹھیک ہے، جو ارتھ کی سرفیس جو ہے وہ واٹر سے کورڈ ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا بولتے ہیں کہ دیر آر واٹر کرائسس، اور کہا جاتا ہے کہ بائی 2025 2 بلین پیپل ول لیو ان ایبسلیوٹ واٹر سکریسٹی، یعنی ان کو بہت زیادہ پانی کی قلت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 بلین لوگ، یعنی 2 ارب لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہوگا 2025 تک۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ زمین کا 70% یا 3/4 75% پر واٹر کورڈ ہے، ٹھیک ہے، یا 30% 70% ارتھ سرفیس جو ہے وہ واٹر سے کور ہے، تو پھر یہ واٹر سکریسٹی کیوں؟ اور جو یہ 70% ہے واٹر کا، اس میں اس کا 70% کا 97% واٹر جو ہے وہ سالٹ واٹر ہے، یعنی 70% کا 3/4 کا 70% واٹر جو ہے وہ سالٹ واٹر ہے، اور 3% ہمارا فریش واٹر ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف یوزز کے لیے۔ اور اس 3% کا 69% جو ہے وہ گلیشیئرز اور آئس کیپس میں کی شکل میں موجود ہے، یعنی 3% کا 69% گلیشیئرز کی شکل میں ہے، آئس برگز کی شکل میں ہے، اور 30% گراؤنڈ واٹر ہے، اور جو 1% بچا رہتا ہے وہ ہمارا جس کو ہم بولتے ہیں کہ جو فریش واٹر ہمارے پاس اویلیبل ہے، یعنی 3% کا 1%، 3% کا جب ہم اس کا 3% کا 0.3% ہمارے پاس لیکس، ریورز اور جس کو ہم بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ سورسز میں، ڈفرینٹ واٹر باڈیز میں وہ اویلیبل ہوتا ہے پینے کے لیے، یعنی 3% کا 69% گلیشیئرز کی شکل میں، 30% گراؤنڈ واٹر کی شکل میں، اور 1% جو بچتا ہے وہ ہمارے لیکس، ریورز اور سویمپس میں کی شکل میں ہوتا ہے، اور جس کو ہم بولتے ہیں رن آف واٹر اینڈ گراؤنڈ واٹر جو ہمارا ہے، تو یہ کنٹینیوسلی رینیو ہو جاتا ہے، ریچارج ہو جاتا ہے، کس سے؟ ہائیڈرولوجیکل سائیکل سے، جس کو ہم واٹر سائیکل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا فریش واٹر کا 1% ہے، 69% تو گلیشیئرز کی شکل میں، 30% گراؤنڈ واٹر کی شکل میں، اور جو 1% ہے تو یہ، یا اوور آل ہم کہیں گے جو فریش واٹر 3% ہے، یہ رینیو ہو جاتا ہے واٹر سائیکل کے ذریعے سے۔ اور چونکہ واٹر ایک رینیویبل ریسورس ہے، پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ دیئر از واٹر سکریسٹی۔ تو کیوں واٹر سکریسٹی ہے؟ تو اس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں، واٹر سکریسٹی اینڈ دا نیڈ فار واٹر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو فیوچر وارز ہوں گے دیٹ ول بی فاٹ آن دا واٹر۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا، چائنا اور پاکستان کے اوپر جنگ کے جیسے حالات ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے، دے آل وانٹ ٹو ہیو ایکسیس اینڈ کنٹرول اوور دا واٹر ریسورسز آف ہمالیاز۔ ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسرے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایوری بڈی وانٹس ٹو کنٹرول دا واٹر ریسورسز، اور چونکہ ہمارے پاس واٹر تو ہے ابنڈنس میں،
70% या 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो फिर भी हाँ, हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं, फिर भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ओनली 3% फ्रेश वाटर है, उसका भी 1% जो हमारे पास रन ऑफ वाटर या ग्राउंड वाटर है, ठीक है। और जब हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो हमारी सोच, हम इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा डेजर्ट एरिया है जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ की औरतें निकली है, अपने सरों पर वो मटका रखे हुए हैं, अर्दन पॉट्स रखे हुए हैं, और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं टू फैच द वाटर, टू गेट द वाटर, ठीक है। और इससे क्या बोलते हैं हम कि वाटर स्कैर्सिटी यानी डेजर्ट एरियाज में उसकी स्कैर्सिटी होती है। इसके अलावा अगर आपकी जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होती है, ये एनुअल प्रेसिपिटेशन या एनुअल रेनफॉल पर भी ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा यानी अगर किसी साल या किसी इलाके में वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी होगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि कश्मीर में अभी बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे इलाकों में इससे ये शिकायत आ रही थी कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे धान को पानी नहीं है। तो दैट मीन्स कि अगर आपके यहाँ रेनफॉल नहीं होती है तो उससे भी वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी जब हम वाटर को ओवर यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जब आपको अनइक्वल एक्सेस टू द वाटर, ठीक है, कुछ लोगों को वाटर अवेलेबल है इन अबेंडेंस, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा कम तादाद में वो अवेलेबल है। और इस सूरत हाल में एक तो अगर आपकी रेनफॉल यहाँ नहीं होती है, दूसरा अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज की, उससे भी क्या हो जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी होती है, क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर होता है ये रिचार्ज होता है किससे? रेनफॉल की वजह से। अगर प्रेसिपिटेशन कम होगी तो रेनफॉल कम होगी, जाहिर सी बात है, तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, आपका सरफेस वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो और इसका असर एक तो सरफेस वाटर पर भी, और जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ज़मीन के अंदर, जैसे हम ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, तो उस पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। अगरचे हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोग सिटीज़ का रुख करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है कि वहाँ पर हमें वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है। जब आपकी पॉपुलेशन है तो एक तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी आपको क्या लगेगा? पानी लगेगा, ये जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोगों को नहाना है, उनको कपड़े धोने हैं, उनको खाना पकाना है, ये तो हो गया डोमेस्टिक यूज़। दूसरा आपको पानी किस पर लगेगा? फूड ग्रेन को ज़्यादा फूड चाहिए आपको, उस पर भी आपको क्या चाहिए लगेगा? ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है कि साथ ही साथ अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, अगर वहाँ पर कंपनीज़ है, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए भी आपको वाटर चाहिए। और जब आप वाटर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा इरिगेट करना पड़ता है आपको अपनी फील्ड्स को, और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ क्या नहीं होती है कि रेनफॉल नहीं होती है, तो इसमें आप क्या करते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तभी आप देखते हैं पंजाब के इलाकों में, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, तो वहाँ पर अक्सर हर एक फार्मर जो होता है उसका अपना ट्यूबवेल होता है, और उससे वो हज़ारों लीटर पानी हर रोज़ निकालता है, क्योंकि हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। नो डाउट हमारे पास ग्राउंड वाटर है, लेकिन जब कंटिन्यूअस रेन नहीं होती है तो आपका जो वाटर टेबल होता है, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, तो वाटर टेबल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, और ऊपर से आप निकालते जा रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है कि ग्राउंड वाटर को भी वाटर टेबल को भी रिचार्ज होने का मौका नहीं मिलता है। अगर वो रिचार्ज होता भी है तो लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको क्या
हमारे यहाँ क्या बोलते हैं हम इसको कि वाटर की शॉर्टेज या स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है। इसके अलावा जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं, तो वो वाटर को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और साथ ही साथ वो सिर्फ वाटर को ही यूज़ नहीं करते बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करते हैं। जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी जो बिजली पानी से बनती है, तो वो 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, यानी हिंदुस्तान में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, हाइड्रो पावर से आता है, ठीक है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से आता है। यानी हिंदुस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसका 22% कहाँ से आता है? वाटर से जनरेट होके आता है। और साथ ही साथ जब आप क्या करते हो कि एक तो हमारी पॉपुलेशन भी डेंस होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा फूड भी उगाना है उस पॉपुलेशन के लिए, उसके लिए भी आपको वाटर चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, प्लस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल जो है तो वो डिप्लीट होता चला जा रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। सपोज अगर आपको 10 फुट या 20 फुट की गहराई पर पानी आता था ट्यूबवेल में, तो लेकिन जब उसको कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, तो आपको फिर 30 फुट खोदना पड़ेगा, उसके बाद 40 फुट, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है तो वो दिन ब दिन क्या गिरता चला जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर इतना ही होता है, लेकिन अगर कहीं पर पानी अवेलेबल भी है तो वो क्या है, वो क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर क्या हुई है? अफेक्ट हुई है, पोल्यूट हुआ है, ठीक है, बाय डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। यानी अगर आपको क्वांटिटी कहीं पर अवेलेबल वाटर अवेलेबल है लेकिन वो क्वालिटी वाटर नहीं है, दैट इज पोल्यूटेड वाटर, that is polluted by the domestic as well as by the industrial wastes, ठीक है। और इसके अलावा उसमें केमिकल्स गए हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम लगाते हैं अपने बागात में छिड़कते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं हम एग्रीकल्चर में, और इससे क्या होता है, ये वाला वाटर क्या है, ये हैजार्डस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमें क्या करना है कि एक तरफ हमें क्या करना है, अपने फूड प्रोडक्शन को भी बरकरार रखना है, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी वाटर को इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ हमें इसको पोल्यूट होने से भी बचाना है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब इस वाटर को फर्दर डिग्रेडेशन होने से क्या बचाए। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर केमिकल्स जाते हैं या पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हम जो यूज़ करते हैं, तो जब ये वाटर के साथ मिल जाते हैं, वाटर कंटेमिनेट होता है, उससे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, मैरीन लाइफ जो होती है, वो भी मुतासिर होती है। तो आप यानी कहने का मतलब तो इंग्लिश में एक सेइंग है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो हर जगह हमारे 74th ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट दैट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक दैट विद वाटर बिकॉज दैट इज पॉल्यूटेड। वाटर तो है बट द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज टोटली सबस्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन पर भी, साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी भी करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी यूज है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें, हम इसको कैसे कंजर्व करें, हम वाटर को कैसे पोल्यूट होने से बचाएं, तो ये सब कुछ हमें सोचना है। और हमारी हुकूमत को भी सोचना है कि हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू।